Hello viewers and my dear students. I am here with a new live session that we had decided for today, that is going on to reproductive and child health services. So I am Piyush Yadav from rjcsk.edu. We are going to take the topic reproductive and child health. If you have more queries or you want to gain more knowledge about this topic or any another topic that is coming in our today's session, so you can go and visit our channel, that is rjcsk.edu, and do like, share and subscribe our channel. If you are going to start the topic, so I am gathering some information about this topic. The content is introduction, what is RCH approach, objective, RCH program phase first, what are the phases divided in RCH, that is also coming in this, what are the components, and also interventions regarding districts, states, and also major intervention what is coming in RCH. RCH second is also there, and the last phase that is also running today's also, so that is also coming in this session. If this topic is coming in community, so we have to know about the community first. If we are dealing with any community, so we know that family is a very small unit of community, and if we are going to give any services to the community people, we are dealing with any small and large family also. So if we are talking about family, so we know that in a family too much members are there in different age group, and in that age group 3 age groups are there, or 3 members are there which are very vulnerable to any disease condition or to make their self ill. First is women, and second child or any old age person. If we are talking about any women, so in women's age, women is more vulnerable because she has to reproduce, she has to make another person also. So in her age group if we are talking, then we also know that in the reproduction age, like in pregnancy age also, the women are more vulnerable to get any disease condition or getting ill very easily. So that's why we are promoting the health of women as a reproductive health, or we can say the child. In the starting of the age as a neonate, maybe the children is more vulnerable, or the neonates are more vulnerable to get any disease conditions or any infection or any illness. So that's why we are included that one also in RCH services. So if we are going with the introduction, we know that 15 October 1997 our Indian government formally inaugurated the reproductive and child health initiative. In our government also, Indian government taking first step in October 15, 1997 to start this services for our nation. And also this, if we are talking about RCS, CARIO 1994 International Population Development Conference, it is started firstly, and the goal of reproductive and child health is to improve the general health outcome of women's, children's and adolescents by the addressing, means by the evaluating their health needs, what are the needs they have, and according to that comprehensive health and integrated manner, according to that we are going to give the services and improving their health also. Globally, health problems that shout to lower maternal and infant mortality. According to the mortality rate of global and India also, we have started this program to reduce the mortality rate in mothers also, or maternal, on the basis of maternal and infants also. We are also going to give a guarantee to safe pregnancy and encourage family planning, how we have to plan our family and prevent illness regarding family planning, and also regarding pregnancy, and we can say infant mortality also. Why we are started RCH and what are the approaches we are decided to give
So we are focusing some age groups also and some health also. We can say that maternal health first, we are going to focus on maternal health. Like in the age of maternity, we can face the prenatal, postnatal and intranatal phases of health, and we can say care, that mother wants this care in the age of maternal period. So we are going to focus on that also. And the second one, child health, how we are promoting the nutrition and also the disease prevention, how we have to promote the child health, how we can promote this is we are focusing on this also. On that time when it is started, on that time immunization is very less in the children's, that persons are not going to take the children's for immunization. It is also the issue of India. And family planning, on that time more persons are there who are not interested in family planning also, and they don't know about family planning. So we are going to assess and also provide the information about contraceptives and also how they have to plan their family. And the next one is health education. The health education, like on that time in India, all hygienic problems are more, sanitation problem is more. So we are going to raise that awareness, how they have to sanitate, they have to sanitate their environment also, and how they have to maintain their hygiene. We are also going to do this approaches also. And next, access to services. What are the services our government started and how they have to take that services? They are going to give that health education also, and ensuring that they know about that services or not. So in that access to services, it is very important to give the equitable services to all the persons. Equitable and equal, these are the two things. If we are talking about the equitable, this is the thing that what they need, according to that we are going to give the services. If we are talking about the objective, what are the objective coming in RCH? So first objective, what we are I am talking about the maternal mortality. Like if any mother is there, and we can say on that time globally and in India also, maternal mortality are more. So we are decided to reduce the maternal mortality, and we are going to work on it. So if maybe we achieved and we reduce the maternal mortality also. Infant and children mortality, on that time too much communicable disease conditions are there who are infecting the infant and children's. So we are also going to reduce that. And the third one is promote family planning and reproductive rights. What are the rights they have, they don't know. So that's why in India we are going to promote family planning, and we are going to give health education regarding family planning and what are the rights they have regarding reproductive rights. Enhance adolescent age. If we are talking about adolescents, so we know that on that time maybe the girls are there, maybe that girls, they don't know about hygiene and also they don't know about their health. So we are going to give health educations also, and we are promoting their health also. Next, improve access to healthcare services. That healthcare services on that time, how they are running on that time. So we are also going to focus and improve the services what we are giving the community persons, and also as the CSC, PSC and other services and other sectors. So increase health awareness and education. On that time awareness regarding their health and also the disease conditions also, that is very less. So we are also giving health education on it, and promote gender equality in India. Gender in 1997, if we are talking about gender equality, it is more like girls are there and boys are there, we are giving more priority to boys. So on that time promotion of gender equality is also there. Like we are going to promote gender equality and strengthen the health systems. ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे
जो हेल्थ सर्विसेज थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। हेल्थ सिस्टम भी थे लेकिन उस टाइम पे उतना स्ट्रेंथन नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि हम ज़्यादा सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हमने क्या किया, जो हेल्थ सर्विसेज उस टाइम की प्रेजेंट थी उन पे हमने काम करना स्टार्ट किया और उस चीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव करने की हमने कोशिश की, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ और उनमें जो भी डिजीज़ कंडीशंस आ रही हैं या न्यूट्रिशन बैलेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम ज़्यादा ट्रीट कर पाएँ। नेक्स्ट, phases. The reproductive and child health, it is divided in two phases on that time. First, phase 1, that is started in 1997 to 2005, and the second phase that is started in 2005 to 2012. These are two phases that are present up to now also, but in 2013 we strengthen, or we can say we give more recall and also some strategy to improve in this programs. What we are started in phase first and phase second, we are going to strengthen, and we can say new strategy we are included in that. Next, if we have next phase first. What are the phase first? What we are started, what we are going to give the components, and what are the objective we are decided to implement in this. So under the RCS program phase first, various provision were made to improve the status of maternal child health. We are going to focus only maternal and child health. RCH first program, in RCH first program we are going to only focus according to the maternal and child health. We are assess the health of the children and mother also, and according to that we are going to give the health services. So provision of essential and emergency care. What are the emergency care are there, or we can say on that time what are the care are needed. I am just saying about the what are the things are going, like उस टाइम पे जैसे सर्विसेज बहुत ज़्यादा नहीं थे, या फिर कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो हमारी हेल्थ सेंटर्स थे वो इतने स्ट्रेंथन नहीं थे कि हम उनमें इमरजेंसी केयर्स प्रोवाइड कर पाएँ। तो जो इंसेंशियल ज़रूरी की जो इमरजेंसी केयर्स थी उनको प्रोवाइड करने के लिए हमने स्टार्ट किया ये इनिशिएटिव लेना कि हमने RCH फर्स्ट में हम ये चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करेंगे, या फिर कह सकते हैं इमरजेंसी केयर्स हम प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे अपने हेल्थ केयर सर्विसेज में। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड ड्रग kit to selected PSCs. What are the PSCs are there और CSCs are there? जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे वहाँ पे हमने जो रिक्वायर्ड, एक तरह से देखा जाए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं या ड्रग किट्स रिक्वायर्ड हैं, उनको हमने स्टार्ट किया पहुँचाना, जिससे जो लोग हैं वो उस चीज़ का लाभ उठा सकें या फिर हम अच्छी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकें, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर कह सकते हैं जो भी स्टेट्स थे उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ एडिशनल ANMs स्टाफ्स एंड नर्सेस एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। उस टाइम पे जो भी हमारे वहाँ हेल्थ सर्विसेज थे उसमें ज़्यादा ANMs या फिर कह सकते हैं नर्सिंग स्टाफ्स नहीं थे, जिसके बेसिस पे क्या हो रहा था कि जो सर्विसेज थी उनको प्रोवाइड करने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी। अगर हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास क्या है हेल्थ वर्कर्स कम है, तो हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम फेस करें, जिसके बेसिस पे हम लोगों को या तो हम उनको अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, या फिर हम बहुत सारे बल्स, एक तरह से देखा है बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो अपना चेकअप कराने के लिए आए हैं, तो हो सकता है कि कम स्टाफ होने की वजह से भी हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से भी जो RCS फेज फर्स्ट था उसमें हमने स्ट्रेंथन के साथ साथ हमने क्या किया, जो लोग थे उनको ज़्यादा रिक्रूट करना स्टार्ट किया, या फिर कह सकते हैं कि एडिशनल ANMs रखनी स्टार्ट की, और जो नर्सिंग स्टाफ्स थे उनको भी अपॉइंट करना, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस थे उस टाइम अपॉइंट करना स्टार्ट किया, जिससे जो हमारी जो PSC है उसके बेसिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को रिक्रूट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। प्रोविज़न फॉर 24-hour डिलीवरी सर्विसेज एट PSC एंड CSC। उस टाइम पे जो कह सकते हैं कि 24 आवर, अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसी मदर है जो रात में ऐसी आ गई और उनका लेबर पेन स्टार्ट हो गया, तो हम उस टाइम पे हम इतने एबल नहीं थे कि हम उनकी डिलीवरी करवा सके। तो उस टाइम के लिए जो RCS सर्विसेज थी वो इस बेसिस पे फेज फर्स्ट स्टार्ट की गई कि अगर 24 आवर्स में कोई भी डिलीवरी हो रही है तो उसके बेसिस पे हम ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ PSC और CSC के बेसिस पे, कि किसी भी मदर को या फिर किसी भी पर्सन को कम्युनिटी के बेसिस पे कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट आपका आ जाता है
RCS फर्स्ट में क्या क्या इंटरवेंशंस हमने लिए। तो इंटरवेंशंस के बेसिस पे हम दो चीज़ों के बेसिस पे काम कर रहे हैं, पहला है आपका मैटरनल एंड दूसरा क्या है चाइल्ड। ये जो इनिशिएटिव लिए गए ये सिर्फ दो के बेसिस पे ही नहीं लिए गए, एडोसेंट्स भी उसमें शामिल थे, जिसमें हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हमने मदर और इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी के बेसिस पे हमने काम किया। नेक्स्ट क्या है प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया, ये चीज़ें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड vitamin A supplements were implemented as child survival measures. We are also included two child survival measures to improve their health. We are going to give the prevention regarding pneumonia and also oral rehydration therapy and vitamin A. What are the things are required on that time? We are going to implement that also. Safe motherhood intervention included tetanus vaccination during prenatal checkup, safe delivery practices and anemia management program, A to G. These things we are starting on that time, like one mother is coming with the prenatal pregnancy, like in the starting age of the pregnancy, this is very we are going to give mandatory vaccination of tetanus. In this time this is very common, but on that time we are not giving this tetanus injection on the prenatal mothers. A target-free approach was adopted to ensure need-based healthcare delivery. हमने जो भी अप्रोचेस स्टार्ट किए ये इसके बेसिस पे नहीं थे कि हमने कोई टारगेट फिक्स किया है, लेकिन इसके बेसिस पे थे कि हमने क्या किया है, जितनी भी नीड है नीड बेस के बेसिस पे हमने ये सारी सर्विसेज स्टार्ट की, जिससे लोगों में इम्प्रूवमेंट हम देख सकें। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग वॉज प्रोवाइडेड एट ऑल लेवल्स। जो हमारे हेल्थ एक तरह से सेंटर लेवल्स हैं या फिर कह सकते हैं सर्विस लेवल्स हैं, उसके बेसिस पे हमने जैसे PSC CSC और SC के बेसिस पे हमने जो भी हाई क्वालिटी ट्रेनिंग्स, चाहे वो डॉक्टर्स के बेसिस पे हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ के बेसिस पे हो, ANMs के बेसिस पे, हमने ये सारे जो भी लेवल्स थे उस टाइम पे उस पर हमने ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट कर दिया या फिर देना स्टार्ट कर दिया लोगों को, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर पाए। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के बेसिस पे भी हमने क्या किया, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन देना स्टार्ट करें। यानी कि इंफॉर्मेशन हमें इंपॉर्टेंट लगती है कि हम इस एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम लोगों के इस सर्विसेज को या फिर कह सकते हैं इस डिजीज कंडीशन को हम क्या करते हैं सही कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उनको कम्युनिकेशन के थ्रू उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना या अवेयरनेस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। RCS पैकेज वेयर स्पेशली डिज़ाइन फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़। जो RCS सर्विसेज थे वो स्पेशली डिज़ाइन थे कि हम ऐसे कम्युनिटीज़ को दिया जाए जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, जिनके पास कम सर्विसेज पहुंच पाती हैं। इसके बेसिस पे जो अर्बन स्लम्स हैं या फिर स्लम्स के बेसिस पे या फिर ट्राइबल्स के बेसिस पे हमने जो RCS सर्विसेज थी वो प्लान की थी। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट सब प्रोजेक्ट इनहेंस लोकल कैपेसिटी बाय प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स एंड हायरिंग contract physicians. What are the on that time physicians are not there, so we are going to recruit the physician as a contract level। कह सकते हैं कि उस टाइम पे हमने जो भी physicians थे उनको हमने contract level पे रखना स्टार्ट किया और हमने STD क्लिनिक्स भी स्टार्ट किया, जिसके वजह से हम लोगों को कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन से बचा पाएँ। कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे या उसके बेसिस पे हमने ये स्टार्ट किया। सेफ एबॉर्शन प्रैक्टिसेस वेयर प्रमोटेड एट PSC। जो PSC के लेवल पे हमने सेफ एबॉर्शन के बेसिस पे भी हमने क्या किया, ऐसे सर्विसेज स्टार्ट की जिससे लोग प्रैक्टिस कर सकें और इसके बेसिस पे भी हमने सेफली एबॉर्शन हम परफॉर्म कर पाएँ। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वॉज इंक्रीज थ्रू NGOs, यानी कि कह सकते हैं कि जो कम्युनिटीज़ थी उनका इन्वॉल्वमेंट NGO के थ्रू भी होने लगा, जो भी वुमेंस ग्रुप थी उनके भी थ्रू होने लगा, या फिर हमने इनको इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लोगों तक पहुंचा पाएँ। एंड जो भी पंचायत थी उनके बेसिस पे प्रोग्राम्स फोकसिंग ऑन एडोसेंट्स वेल-बीइंग एंड पर्सनल हाइजीन वेयर इंट्रोड्यूस। जो भी एडोसेंट्स थे उनके बेसिस पे उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वेलबींग करने के लिए हमने क्या किया, उन पे ही फोकस करना स्टार्ट किया, खास करके उनकी पर्सनल हाइजीन पे, और जो भी एक तरह से कह सकते हैं उनकी हेल्थ को हम इम्प्रूव कर पाएँ और क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर पाएँ, इसलिए हमने उन पे भी काम करना स्टार्ट किया। फेज़ फर्स्ट में इंटरवेंशन स्टेट्स में क्या देखने को मिले, RTI और STD स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट वेयर
प्रोवाइडेड एट द सब डिविजनल लेवल्स, यानी कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस आती हैं उनके बेसिस पे स्क्रीनिंग हमने स्टार्ट की, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्कैन कर पाएँ, एसेस कर पाएँ और उसके बेसिस पे उनको हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। नेक्स्ट, सम FRU मीन्स फर्स्ट रेफरल यूनिट ऑफर्ड इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर। जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है उस पर भी हमने क्या किया, जो भी इमरजेंसी ऑब्स्टेटिकल केयर था उसको भी स्टार्ट किया। और दूसरा क्या है, एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन मेंटेनिंग स्टैटिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी एक तरह से जो भी हम उस टाइम पे सर्विसेज चला रहे थे उसके बेसिस पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया, उसके बेसिस पे हमने एम्फेसिस लिया जिससे हम लोगों को और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। और जो भी RCS था इसका बेस ही यही था कि हम इस चीज़ को और इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट क्या है, एन एडिशनल ANM वॉज डिस्प्लोड एट सब सेंटर। जो ANMs थी उनको भी एडिशनल ANMs हमने रखना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, medications and equipments including ANMs kit were supplied to sub centers to enhance delivery services and emergency treatments। उस टाइम पे जो ANMs थी उनको हमने उनकी खुद की किट देना स्टार्ट किया, जिससे जो भी एक तरह से सब सेंटर्स पे माइनर अलाइनमेंट्स हैं उनके, या फिर कह सकते हैं डिलीवरी के बेसिस पे वो खुद से काम कर पाएँ, क्योंकि हमने उनके बेसिस पे ट्रेनिंग भी स्टार्ट की थी, जिससे वो ट्रेंड हो गई हैं इस चीज़ के लिए कि वो डिलीवरी या इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएँ किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को, या फिर कह सकते हैं कि हमारे जो इंजरीज हैं उनके बेसिस पे। प्रेग्नेंट वुमेन्स वेयर प्रोवाइडेड एक्सेस टू रेफरल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन इमरजेंसी। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको हमने इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड किया, रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया, जिससे अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है या फिर अगर कोई भी मदर ऐसी है जिसको ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, उनको रेफरल यूनिट्स के बेसिस पे भी हमने ट्रांसपोर्ट देना स्टार्ट किया। यानी कि कह सकते हैं कि कम्युनिटी के बेसिस पे अगर हमें PSC लेके जाना है तो हम ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे हम कैसे उनको लेके जाएंगे, एम्बुलेंस या फिर किसी चीज़ के बेसिस पे। नेक्स्ट क्या है, RCS फर्स्ट व्हाट आर द मेजर सर्विसेज। क्या क्या मेजर सर्विसेज हमने प्रोवाइड किए थे। सबसे पहले आपका आ जाता है इंसेंशियल ऑब्स्टेटिकल केयर। मैटरनल हेल्थ के बेसिस पे अगर हम ऑब्स्टेटिकल केयर अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि जो भी मदर है उनकी डिलीवरी सेफली होगी, और हो सकता है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं डिलीवरीज में उनसे हम उनको अच्छी तरीके से हेल्दी तरीके से हम डिलीवरी करके पेशेंट को और कह सकते हैं अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी लाइफ को बचा सकते हैं। तो इंसेंशियल ऑब्स्टेटिकल केयर हमने देना स्टार्ट किया। इमरजेंसी ऑब्स्टेटिकल केयर ऑल्सो मीन्स ट्रांसपोर्टेशन हमने स्टार्ट कर दिया, ANMs को ट्रेन कर दिया, प्लस ANMs के बेसिस पे जो भी किट थी उनको प्रोवाइड करना स्टार्ट किया कि अगर कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो वो कैसे उनको डील करेंगी, या फिर कह सकते हैं कि उस टाइम पे इमरजेंसी में उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ों से हमने उनको स्टार्ट किया, हमने उनको देना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्या है, 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज एट PSC एंड CSC। जो भी उनके अगल बगल के PSC यानी कि कह सकते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स थे, उनमें हमने 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज भी स्टार्ट करा दी कि अगर कोई भी ऐसी अगर ऐसी कोई भी डिलीवरी आती है जो 24 आवर के अंदर कभी भी आती है तो उस टाइम पे हम उन्हें ट्रीट कर पाएँ और अच्छी तरीके से हम उन्हें मैनेज कर पाएँ। तो नेक्स्ट आपका क्या रहता है, मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑल्सो मीन्स हमने अभी पढ़ा कि एबॉर्शन के बेसिस पे हमने लोगों को ट्रेन करना, प्लस कैसे हम बिना इन्फेक्शन हुए हम कैसे एबॉर्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हमने ट्रेनिंग देनी भी स्टार्ट की और लोगों को ट्रेन करना भी स्टार्ट किया कि मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमें कैसे परफॉर्म करना है। ये भी 1971 में जो स्टार्ट हुई थी, इसके बेसिस पे भी हमने काम करना स्टार्ट किया। कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जो भी रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो भी ट्रैक इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं वुमेन्स में, उनके बेसिस पे भी हमने उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि STD के बेसिस पे हमने कुछ प्रिवेंशन स्टार्ट किए, हेल्थ एजुकेशन स्टार्ट किए। नेक्स्ट जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनके बेसिस पे भी हमने कंट्रोल करने के लिए लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है आपका इम्यूनाइजेशन। उस टाइम पे जो इम्यूनाइजेशन है वो सबसे कम देखने को मिलता था, इस वजह से हमने इम्यूनाइजेशन को भी क्या किया, प्रमोट करना स्टार्ट किया और इसके बेसिस पे भी लोगों को अवेयर किया कि वो इम्यूनाइजेशन खुद भी लें और जो भी उनके घर के बच्चे हैं उनको भी हम इम्यूनाइजेशन करवाएं, जिससे वो कुछ ऐसी जानलेवा बीमारी हैं उनसे वो बच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, RCS फॉर सर्विसेज एंड मेजर इंटरवेंशन। व्हाट आर द इंटरवेंशन आर कमिंग इन RCS फर्स्ट, सो वी आर गोइंग टू सी ड्रग एंड इक्विपमेंट्स। व्हाट आर द इक्विपमेंट्स वी आर गोइंग टू गिव
on that time. So first is equipment kit were supplied at various level of follows. सब सेंटर पे क्या क्या किट हमने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ड्रग किट ए, इसका मतलब ये हुआ कि जो उस टाइम पे जो ड्रग्स थी, यानी कि माइनर एलिमेंट्स की जो ड्रग्स थी, ऐसी ड्रग्स जो हम यूज़ करते थे, अगर किसी भी पेशेंट में डायरिया देखने को मिल रहा है या फिर वोमिटिंग देखने को मिल रही है या फीवर, हल्का फुल्का फीवर देखने को मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे जो ड्रग किट है उसको हम स्टार्ट करते हैं, यानी माइनर एलिमेंट्स के बेसिस पे जो भी लोग हैं ऐसे माइनर डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए हम ड्रग किट ए तैयार करते थे और ये हम प्रोवाइड करवाते थे सब सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, जिससे हम लोगों को क्या करें, ईजिली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएँ। जो ड्रग किट बी थी, यानी कि ड्रग किट बी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें जो डिलीवरी के लिए इम्पॉर्टेंट थी और ऐसे इमरजेंसी केयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट थी, उनके लिए हमने किट बी स्टार्ट की, जैसे ऑक्सीटोसिन उसमें रखना और जो अलग जो सर्जिकल इंटरवेंशंस के लिए इक्विपमेंट्स थे वो हमने ड्रग किट में रखा। मिडवाइफरी किट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द मैटरनल हेल्थ, यानी कि कह सकते हैं कि डिलीवरी परफॉर्म करने के लिए जो मैटरनल किट थी वो हमने स्टार्ट की। सब सेंटर इक्विपमेंट्स, व्हाट आर द कमिंग इन द सब सेंटर, we can say what are the equipments are needed in sub center. We are also providing that at PSC level. What are the things we have to give on PSC level? So PSC equipment kit, that is also coming in the minor elements and also with the obstetrical equipments also. It is also coming in this. Sub center level पे हमने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था? सबसे पहले equipment provide from the kit E to kit P. किट ई टू किट पी, इमरजेंसी केयर्स के लिए जो किट प्रोवाइड करने के लिए आती हैं वो आती हैं आपकी किट ई में, और पी मीन्स पोस्ट नेटल और कह सकते हैं प्री नेटल के बेसिस पे या फिर जो भी प्यूपेरियम पीरियड के बेसिस पे जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है वो आ जाती हैं किट पी में। इंसेंशियल न्यूबॉर्न केयर्स के बेसिस पे हमने किट प्रोवाइड करना किया कि रेजिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें नीडेड होंगी और उस टाइम पे हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो आ जाती हैं आपकी इंसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में। नेक्स्ट आपका जाता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORS, या फिर इसके बेसिस पे लोगों को एजुकेट करना जिससे वो लोग क्या कर सकें, खुद से ही ORS प्रिपेयर कर पाएँ। ये चीज़ें भी हमने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी इन चिल्ड्रंस, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशंस आर कमिंग इन दिस, सो वी आर ऑल्सो डीलिंग विद दैट इन द सर्विसेज इन RCS फर्स्ट। So this is the RCS first. What are the things we are seeing in that? We have to know that on that time what are the services we are started. In RCS second, it is started in 1 April 2005. ये जो था ये मेनली फोकस हमने इस चीज़ में हम सबने मेनली फोकस किया था कि हमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में मोर्टेलिटी एंड मोबालिटी को कैसे हम रिड्यूस करेंगे। पहले वाले में भी फोकस यही था, लेकिन हमने कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल नहीं डिसाइड किया था, लेकिन इसमें हमने गोल डिसाइड किया है कि मोर्टेलिटी एंड मोबालिटी रेट को हमें इस जो फेज सेकेंड है उसमें हमें कम करना है। यह स्टार्ट हुआ था आपका 1 अप्रैल 2005 में। और जो इंसेंशियल केयर, व्हाट आर द इंसेंशियल केयर मेजर स्ट्रैटेजी हमने क्या बनाई थी, तो सबसे पहले जो मेजर स्ट्रैटेजी थी वो थी आपकी इंसेंशियल ऑब्स्टैटिकल केयर। ऑब्स्टैटिकल केयर के बेसिस पे हम जो केयर प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, वो आपका जाता है फर्स्ट आपका आएगा क्या, एंड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज, यानी कि व्हाट आर द डिलीवरीज आर डूइंग इन एनीवेयर वेयर वी हैव टू इंट्रोड्यूस द एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। नेक्स्ट स्किल्ड अटेंडेंस एट द डिलीवरी, that person who have trained in that skill to take deliveries. And next, policy decisions. These three things we are going to implement in RCS second. And the second is emergency obstetrical care. What are the things are coming in emergency, हमें उसके साथ भी डील करना है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, क्या है ऑप्टिमाइजिंग फर्स्ट रेफरल यूनिट, यानी कि अगर ऑब्स्टेटिकल केयर के बेसिस पे या कोई इमरजेंसी के बेसिस पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके बेसिस पे हम कैसे जो लोग हैं उनको हम रेफ़र करेंगे या फिर यहाँ से वहाँ कैसे भेजेंगे, इसके बेसिस पे भी हमने क्या किया, इस पर भी हमने काम किया। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमाइजिंग PSC एंड CSC फॉर राउंड क्लॉक डिलीवरी सर्विसेज। राउंड क्लॉक मीन्स 24 आवर डिलीवरी इमरजेंसी के बेसिस पे हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इसमें हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथनिंग द रेफरल सिस्टम
on that time referral system is very important because if emergency in obstetric are there so we have to refer the patient. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, मैटरनल एंड मोर्टेलिटी एंड मोबालिटी की. मोर्टेलिटी मीन्स क्या, डेथ रेट, एंड मोबालिटी मीन्स क्या, डिजीज रेट. तो कह सकते हैं कि अगर हम इसके बेसिस से बात करें तो अगर रेफरल यूनिट या फिर कह सकते हैं रेफरल यूनिट हमारी वीक रही तो हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन में पेशेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. तो RCS में हमने इसके बेसिस पे भी काम किया. अब क्या क्या ऑब्स्टेटिकल केयर इंस्टीट्यूशनल के बेसिस पे हमने किया, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होते क्या हैं. द पर्पज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी टू इनकरेज इट 50% ऑफ PSC एंड CSC वुड बी कन्वर्टेड इनटू 24 आवर डिलीवरी फैसिलिटीज. यानी कि कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास उस टाइम पे हेल्थ सेंटर्स थे उन्हें हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया कितने में, 24 आवर डिलीवरी सिस्टम में. यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी डिलीवरी किसी भी टाइम पे आए उस टाइम पे हम उसको कंडक्ट करवा सकते हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटी थी. नेक्स्ट आपका क्या था, स्किल अटेंडेंट्स एट डिलीवरी. यानी कि ऐसे जो लोग जो इंटरेस्टेड थे या फिर कह सकते हैं कि ANMs, उनको हमने गाइड किया, उन्हें हमने ट्रेन किया जिससे वो डिलीवरी खुद से परफॉर्म कर पाएँ. एक बार कह सकते हैं कि ऐसे MOS मीन्स मेडिकल ऑफिसर्स या फिर ANMs या जो भी लेबल हेल्थ वर्कर्स थी, लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स जो थी, उनको हमने ट्रेन किया जिससे वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डिलीवरी करवाना स्टार्ट करें. एक तरह से इनके बेसिस पे भी हमने उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया. नेक्स्ट क्या है, पॉलिसीज डिसीजंस. यानी कि ANM या लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स या फिर कह सकते हैं स्टाफ नर्सेस परमिटेड टू यूज मेडिसिन टू लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी इन सर्टेन इमरजेंसी केस. यानी कि हमने क्या किया, उन्हें सर्टिफाइड किया या फिर कह सकते हैं कि उनको परमिशन दी कि वो जब भी इमरजेंसी ऑब्स्टेटिकल केयर ऐसी कोई आती है, ऑब्स्टेटिकल ऐसा केस कोई आता है कि उनको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, तो हाँ वो उस टाइम पे क्या कर पाएँ, कोई भी इमरजेंसी मेडिसिन यूज़ कर पाएँ. नेक्स्ट आपका क्या है, इमरजेंसी ऑब्स्टेटिकल केयर. इमरजेंसी ऑब्स्टेटिकल केयर में कह सकते हैं कि क्या क्या इमरजेंसीज के बेसिस पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं. तो नेक्स्ट क्या है आपका, टू प्रोवाइड इमरजेंसी ऑब्स्टेटिकल केयर द मिनिमाइजिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय ए फुल्ली इक्विप्ड फर्स्ट रेफरल यूनिट मस्ट बी एक्टिवेटेड. नॉर्मल एंड असिस्ट डिलीवरीज इंक्लूडेड इन 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज. यानी कि जितनी भी उस टाइम की जो डिलीवरीज थी या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल असिस्टेंट डिलीवरीज थी, वो 24 आवर्स के बेसिस पे हमने हर एक सर्विसेज या फिर कह सकते हैं सेंटर्स को हमने अपडेट कर दिया, जिसके बेसिस पे 24 आवर डिलीवरी हम कहीं पे भी प्रोवाइड कर पाएँ किसी को भी अगर नीड होती है तो. इमरजेंसी ऑब्स्टेटिकल केयर इंक्लूड्स सर्जिकल प्रोसीजर्स सच एज सिजेरियन सेक्शंस ऑल्सो. यानी कि उस टाइम पे जो भी सिजेरियन सेक्शन की अगर ज़रूरत पड़ती है किसी मदर को, तो हम वो भी परफॉर्म कर पाएँ अपने PSC पे या फिर CSCs पे. नेक्स्ट, न्यू बॉर्न स्पेशलाइज्ड केयर फॉर न्यू बॉर्न्स. यानी कि जो अगर न्यू बॉर्न्स की वजह से कोई भी ऐसी डिलीवरी हो रही है कि न्यू बॉर्न्स को किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है या फिर कह सकते हैं कि किसी तरह का इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे हम न्यू बॉर्न्स को केयर प्रोवाइड कर पाएँ, ऐसे हमने फैसिलिटीज़ स्टार्ट की. नेक्स्ट, इमरजेंसी पीडियाट्रिक केयर सर्विसेज फॉर मैनेजिंग पीडियाट्रिक इमरजेंसीज ऑल्सो. यानी कि उस टाइम पे जो भी पीडियाट्रिक यानी कि कोई भी ऐसा चिल्ड्रन या चाइल्ड आ रहा है हमारे पास जो क्या है सफ़र कर रहा है किसी डिजीज कंडीशन से और वो सीवियर कंडीशन में है, तो हम उस चीज़ को हैंडल कर पाएँ. कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूड्स लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स. उस टाइम पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था या फिर जो भी हमारा ऐसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स था, वहाँ पे हमने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली स्क्रीनिंग में स्टार्ट किया, फिर कैसे प्लानिंग सर्विसेज में स्टार्ट की, जिसमें हम लेप्रोस्कोपी एक तरह का प्रोसीजर होता है जो कि अक्सर बहुत अच्छी जगह पे नहीं देखने को मिलता है. तो इस टाइम पे तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पे ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, तो इसको भी हमने अवेलेबल कराया. नेक्स्ट, सेफ एबॉर्शन सर्विसेज. यानी कि उस टाइम पे जो एबॉर्शन सर्विसेज थी वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड या फिर कह सकते हैं कि उस टाइम पे बहुत कम देखने को मिलती थी. उसको भी हमने क्या किया, इन्हेंस किया, लीगली और सेफ एबॉर्शन कराना हमने स्टार्ट किया. नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट.
STI ट्रीटमेंट्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि उस टाइम पे हमने जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस थे, एक तरह से देखा जाए जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज फेज फर्स्ट में हमने पढ़ा है, वही सेम चीज़ को हमने इसमें इन्हेंस कर दिया है। यानी कि उस टाइम पे भी हम क्या कर रहे थे, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कर रहे थे STI के बेसिस पे, और न्यूबॉर्न्स के स्क्रीनिंग के बेसिस पे भी हम यही सेम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को इन्हेंस कर दे, हमने सेकेंड फेज में इसी चीज़ को इन्हेंस कर दिया। नेक्स्ट क्या है, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी। उस टाइम पे जो PSC या CSC के बेसिस पे जो ब्लड बैंक था वो अवेलेबल नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि ब्लड फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो वो भी हमने अवेलेबल कराई। क्रूशियल लेप्रोस्कोपिक सर्विसेज, या फिर कह सकते हैं कि डायग्नोसिस के बेसिस पे जो भी क्रूशियल ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट या इमरजेंसी कह सकते हैं लेप्रोस्कोपी की क्या कह सकते हैं कि लेबोरेटरी की ज़रूरत है, तो हम उसके बेसिस पे भी हमने काम करना स्टार्ट किया। ट्रांसपोर्टेशन एंड रेफरल सर्विसेज, उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन था उसके बेसिस पे हमने काम किया कि अगर किसी चीज़ को इमरजेंसी में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके बेसिस पे भी हम क्या कर पाएँ, लोगों को वो सर्विसेज या रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। स्ट्रेंथनिंग रेफरल सर्विसेज, पंचायत रिसीव फंड टू हेल्प द, जो भी उस टाइम पे हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी विलेज या किसी भी कम्युनिटी में होता है कि पंचायत अगर आपको सपोर्ट करता है तो उसके बेसिस पे भी हम ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कोई भी इनिशिएटिव लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल महसूस करते हैं। तो उस टाइम पे जो पंचायत थी वो उस टाइम पे फंड लेती थी, जिसकी वजह पे वो जो भी रेफरल सर्विसेज थी उनको ऑब्स्टैटिकल इमरजेंसी या फिर किसी तरह की भी इमरजेंसी हो उसके बेसिस पे वो उस फंड का यूज़ करके जो भी पेशेंट था उसको हॉस्पिटल तक क्या करता था, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुँचाता था। इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन NGOs एंड कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प की वजह से, या कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी हमने जो भी रेफरल सर्विसेज है उसको हमने स्ट्रेंथन किया। नेक्स्ट, न्यू अराइवल्स इनिशिएटिव, व्हाट आर द न्यू इनिशिएटिव वी आर टेकिंग इन RCS सेकेंड। So MBBS physicians receive life-saving anesthesia training for crucial obstetrical treatment। उस टाइम पे हमने न्यू इनिशिएटिव ले लिया कि हमने MBBS जो फिजिशियंस थे उस टाइम उनको हमने क्या किया, एजुकेट करना स्टार्ट किया, एनेस्थीसिया का यूज़ करना या फिर उनको हमने ट्रेन करना स्टार्ट किया, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर पाएँ, अपने सेंटर्स पे अपॉइंट कर पाएँ और वो अच्छी तरीके से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। A 16 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम कवरिंग ऑल द ऑब्स्टैटिकल मैनेजमेंट एबिलिटीज़, यानी कि 16 वीक की एक तरह से देखा जाए ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड की, जिससे जो भी सिजेरियन सेक्शन प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है उसके बेस पे एनेस्थीसिया जो वो ट्रेनिंग ले पाए कि एनेस्थीसिया का यूज़ वो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑब्स्टैटिकल क्या है, इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर MBBS डॉक्टर्स। ये जो स्कीम थी या फिर कह सकते हैं ये प्रोग्राम जो था वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी आर एस्टेब्लिश्ड एट फर्स्ट रेफरल यूनिट इन, कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने रेगुलेटरीज के बेसिस पे या फिर कह सकते हैं कि जो भी हमारे उस टाइम के जो लेबल्स थे, सेंट्रल लेबल्स जो थे, उसके बेसिस पे हमने जो ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी थी वो भी हमने स्टार्ट की, गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना, व्हाट आर द इनिशिएटिव या फिर कह सकते हैं कि किस बेसिस पे हम काम करना हमने स्टार्ट किया, क्या क्या हमने योजनाएं बनाई या फिर कह सकते हैं क्या क्या हमने सर्विसेज बनाई। तो सबसे पहले था जननी सुरक्षा योजना, जो कि कह सकते हैं कि अभी हमने इसको ये स्कीम चेंज हो गई है और इसका हमने नाम रख दिया है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। नाम तो हम इस चीज़ को इसी चीज़ से नोट करते हैं, पर इसको हमने क्या किया है, मॉडिफाइड कर दिया है नेशनल मोर्टालिटी बेनिफिट स्कीम के बेसिस पे। ये लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2005 में, और इसके बेसिस पे हम क्या करते थे कि जो भी प्रेगनेंसी के बेसिस पे जो भी केयर प्रोवाइड करें, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज के बेसिस पे या फिर कह सकते हैं कि डिलीवरी या जो भी एंटीनेटल पोस्टनेटल या जो भी मैटरनल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो जननी सुरक्षा योजना में आता था। ठीक है, एज ए लिंक वर्कर्स इट combines financial aids with instrumental delivery during pregnancy, delivery and the first survival month after giving birth. First survival month after giving birth. It is a fully government finance program under the National Rural Health Mission. ये एक ऐसा कह सकते हैं कि प्रोग्राम था या योजना थी जिसके थ्रू हमने क्या किया था कि जो भी मदर्स थी उनको हमने वर्कर्स के थ्रू लिंक करना स्टार्ट किया और
फाइनेंशियली भी हमने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, और जो फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी, जो फर्स्ट वीक थी उसमें सर्वाइवल कितना था उसके बेसिस पे हमने काम करना स्टार्ट किया, और जो बर्थ देने के बाद जो भी मदर्स थी उनके हेल्थ पे हम जो सर्विसेज थे वो हम प्रोवाइड करने हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्या है, वंदे मातरम स्कीम। दीज स्कीम्स आर ऑल्सो कंटिन्यूइंग नाउ ऑल्सो। सो एनी ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिस्ट, maternal home, nursing homes or MBBS doctor is eligible to provide safe motherhood services under this। कह सकते हैं कि जो वंदे मातरम स्कीम थी ये किसी हर एक ऑब्स्टेटिक कह सकते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो भी हैं या फिर कोई भी MBBS डॉक्टर है वो किसी भी एलिजिबल कपल को ये प्रोवाइड कर सकता है, और ये गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, और इसके बेसिस पे वो सिर्फ छोटा सा एक गवर्नमेंट इनसे स्कीम करती है और इसके बेसिस पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द वंदे मातरम लोगो विल बी डिस्प्लेड एट द क्लिनिक्स ऑफ द एनरोल्ड फिजिशियन। अगर ऐसा कोई भी डॉक्टर है या फिर कह सकते हैं फिजिशियन है या गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके क्लिनिक्स में ये लोगो आराम से देखने को मिल जाएगा जो भी वंदे मातरम स्कीम के बेसिस पे काम कर रहा है। फ्री डिलीवरी ऑफ TT इंजेक्शंस, ओरल पिल्स, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स विल बी प्रोवाइडेड। जो वंदे मातरम स्कीम है इसमें जो TT इंजेक्शंस है या ओरल पिल्स है या फिर आयरन या फिर कह सकते हैं कि फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ये सारी फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं जो भी मदर्स हैं उनको। सेफ एबॉर्शन सर्विसेज, जो अंडर RCS सेकेंड द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। ये जो सेफ एबॉर्शन सर्विसेज है ये RCS सेकेंड के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन अंडर द प्रीव्यू ऑफ MTP एक्ट 1971, जो भी एक तरह से देखा जाए कि इसके अंडर में हम कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और जो भी MTP के बेसिस पे जो इंटरवेंशंस देखने को मिलते हैं वो सेफ एबॉर्शन के बेसिस पे हम कुछ पिल्स और कुछ मेडिकेशन के बेसिस पे हम जो भी मदर्स हैं या फिर उनको हम प्रोवाइड करते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल एंड इकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया WHO के बेसिस पे जो भी रिकमेंडेशंस या फिर कह सकते हैं कि ड्रग हैं उनको हम इस स्कीम में या सर्विसेज में प्रोवाइड करते हैं। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे के बेसिस पे कह सकते हैं कि ऐसे जो पर्सन्स हैं या फिर एंटीनेटल पोस्टनेटल मदर्स होती हैं उनको हम न्यूट्रिशन डे के बेसिस पे हम उन्हें एक तरह से सपोर्ट या फिर कह सकते हैं कि डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाएँ। नेक्स्ट क्या है, वंस ए मंथ एट आंगनवाड़ी क्लिनिक्स, यानी कि पूरे मंथ में एक दिन जो ये सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं टू सपोर्ट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर ऑफ PV। कह सकते हैं कि जो भी मदर्स हैं वो इनके अंडर आती हैं और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी ये इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के बेसिस पे, या फिर कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी को ये सपोर्ट करते हैं। हेल्थ एजुकेशन, जो भी मदर्स हैं उनको हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन के बेसिस पे, इम्यूनाइजेशन के बेसिस पे या उनकी हेल्थ के बेसिस पे वो किस तरह से अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकती हैं, ये इस स्कीम में या न्यूट्रिशन डे के बेसिस पे हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैटरनल डेथ रिव्यू, ये मैटरनल डेथ रिव्यू का मतलब है कि कह सकते हैं कि जो भी फैसिलिटीज़ या मैटरनल के बेसिस पे हम जो रिव्यूज़ या फिर कह सकते हैं कि लोगों को ये बताना है कि क्या क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं एक तरह से, उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। बोथ फैसिलिटी एंड कम्युनिटी मैटरनल डेथ रिव्यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टैटिक केयर एंड रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी। कह सकते हैं कि जो मैटरनल डेथ रिव्यू, अगर हम किसी चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं और हमें ये पता चलता है कि इसका जो रेट है वो कितना है और अभी हमें कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये उसके बेसिस पे काम करता है। नेक्स्ट क्या है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम JSSK स्टार्ट हुआ था 1 जून 2011 with the goal of improving health services for women and children. The program provided the following benefits. कह सकते हैं कि जननी सुरक्षा योजना जो है ये स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2011 में, और ये जो फैसिलिटीज़ थी ये हमने प्रेग्नेंट वुमेन्स के बेसिस पे फैसिलिटीज़ प्लान की थी। और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, फर्स्ट एनी प्रेग्नेंट वुमेन गिव बर्थ इन PH इंस्टीट्यूशंस will receive free care including cesarean section,
यानी कि ये जो जननी सुरक्षा योजना है, कोई भी ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन है अगर वो इंस्ट्रूमेंशल कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहीं पे भी हो रही है उसकी, तो वो फ्री सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जाएंगी, अगर वो सिजेरियन सेक्शन है तो भी। नेक्स्ट क्या है, फ्री medication supplies and food for up to 3 days during a normal delivery and up to 7 days for a cesarean section। अगर जो मदर है वो कोई भी बेबी डिलीवर करती है तो उसमें जो फूड है वो उन्हें 3 डेज के लिए प्रोवाइड किया जाएगा अगर उनकी नॉर्मल डिलीवरी है, और अगर सिजेरियन सेक्शन है तो 7 डेज के लिए उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा, ये जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, फ्री डायग्नोस्टिक एंड ब्लड, यानी कि अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो जननी सुरक्षा योजना के थ्रू जो सर्विसेज है उसका लाभ ले रही है तो उसके बेसिस पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन या फिर कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक जो भी ब्लड से रिलेटेड जो भी टेस्ट होगा वो फ्री होगा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द होम टू द इंस्टीट्यूशन एंड बिटवीन इंस्टीट्यूशंस इन टू द इवेंट ऑफ रेफरल, या फिर कह सकते हैं कि अगर जो मदर है वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आती है तो उसको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो अपने घर से इंस्टीट्यूशन आ रही है या फिर इंस्टीट्यूशन से कहीं रेफर अगर उसको किया जा रहा है उसके हेल्थ इश्यूज के बेसिस पे, तो भी हम उन्हें क्या करेंगे, ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑल इल न्यूनेट्स आर इंटाइटल टू द सेम बेनिफिट्स, यानी कि कह सकते हैं कि जो भी यूनिट्स होंगे उनको भी हम इसी के अंतर्गत देखेंगे, यानी रेफरल यूनिट्स हम वैसे प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन ब्लड से रिलेटेड हो रहा है तब भी हम इन्वेस्टिगेशंस या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम करवाएंगे फ्री में। नेक्स्ट क्या है, द प्लान हैज़ नाउ बीन extended to include coverage for ill newborns, postnatal care and एंटीनेटल केयर ऑल्सो, यानी कि ये जो प्लान है इसको हमने क्या किया है, एक्सपेंड किया है, और इसके बेसिस पे हमने क्या किया है कि जो भी इल न्यूबॉर्न्स हैं उनके बेसिस पे हम उनको भी हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। पोस्टनेटल केयर, यानी कि कह सकते हैं कि जो मदर हैं अगर वो डिलीवरी के बाद किसी तरह का इंटरवेंशन से या फिर कह सकते हैं कि डिजीज कंडीशन देखने को मिल रही है या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो उसके बेसिस पे भी हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। एंटीनेटल और पोस्टनेटल के बेसिस पे भी हम यही सेम सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड हेल्थ एम्स, यानी कि हमने मैटरनल के बेसिस पे अभी तक बात कर ली, अब हम चाइल्ड के बेसिस पे बात करेंगे कि व्हाट आर इनिशिएटिव वी आर टेकिंग इन RCS सर्विसेज दैट इज फॉर चिल्ड्रंस और चाइल्ड। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो चाइल्ड के बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि एट द बर्थ इम्यूनाइजेशन। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो चिल्ड्रन से उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इंसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, यानी कि डिलीवरी के तुरंत बाद जो भी ज़रूरी है, जो भी केयर ज़रूरी है न्यूबॉर्न को, वो हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हु नीड इट, जो भी बच्चा ऐसा है जो क्या है डिहाइड्रेटेड है तो उसके बेसिस पे हम उसे ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी इन चिल्ड्रंस, जो भी विटामिन ए डिफिशियंसी चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है, अगर जो भी बेबी है या जो भी चिल्ड्रन है अगर वो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है या फिर कह सकते हैं कि तो हम उसे क्या करेंगे, प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसी कोई डिफिशियंसी उसके में नहीं देखने को मिल रही है तो हम उससे प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि स्टार्टिंग में प्रिवेंशन इस चीज़ से बताने की कोशिश करेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनीमिया, बच्चों में सबसे ज़्यादा एनीमिया देखने को मिलता है, उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा था एक तरह से देखा जाए, अभी भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर स्लम या फिर कह सकते हैं कि ट्राइबल एरियाज़ के जो बच्चे हैं तो उसमें हम एनीमिया से बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके बेसिस पे जो न्यूनेट्स एंड चाइल्डहुड के बेसिस पे जो इतनी इलनेस देखने को मिल रही है उनसे भी हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, उनका मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हम दे सकते थे उस टाइम कह सकते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं RCS की, यानी कि RCS सेकंड की, तो उसमें जो सर्विसेज हम उस टाइम प्रोवाइड कर सकते थे होम बेस्ड, वो हमने क्या किया, स्टार्ट किया या फिर कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजी बनाई। द स्ट्रैटेजी ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर एम टू रिड्यूस 5 ईयर चिल्ड्रंस, यानी कि जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई जिससे हम क्या कर सकें, जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम किसी भी चिल्ड्रंस के बेसिस पे, जिससे हम मोर्टालिटी रेट को कम कर पाएँ, मोबालिटी रेट को कम कर पाएँ, और जो चाइल्ड की जो लाइफ है इधर कह सकते हैं और हेल्थ है उसको हम सिक्योर कर पाएँ। हेल्थ केयर एंड प्रैक्टिसेस इन चिल्ड्रंस एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन।
तो चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट्स, क्या क्या चीज़ें उस टाइम, क्या क्या कंपोनेंट्स हमने स्टार्ट किए थे, कह सकते हैं किसके बेसिस पे हमने RCS प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे। सबसे पहले आपका जाता है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर। सबसे पहली चीज़ जो हमने स्टार्ट की उस टाइम, ये सर्विसेज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्या है, IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड। नेक्स्ट होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर्स। नेक्स्ट नवजात शिशु सुरक्षा कल्याण। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बाल संस्था कल्याण। सो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हमने स्टार्ट की थी। सबसे पहले आपका आ जाता है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल केयर फॉर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस अंडर 5 एज। हमने ये स्टार्ट किया था एक्चुअली जो 5 साल के जो बच्चे थे, या फिर कह सकते हैं अंडर 5 एज के जो बच्चे थे, उनके लिए हमने स्टार्ट किया था। द सर्विसेज प्रोवाइडेड इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें हम इसमें प्रोवाइड कर रहे थे। सबसे पहली चीज़ हमने प्रोवाइड की 24 आवर केयर एंड मॉनिटरिंग ऑफ द चिल्ड्रंस। अगर जो बेबीज़ हैं जो एक्यूट माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, उनको हमने ये केयर या ये सर्विसेज हमने प्रोवाइड की। सबसे पहले 24 आवर्स हमने मॉनिटरिंग स्टार्ट की। ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन दे आर सफरिंग, हमने वो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। थेरेप्यूटिक फीडिंग स्टार्ट की, यानी कि जिससे जो माल न्यूट्रिशन को हम ट्रीट कर पाएँ, प्लस उनको एडिक्वेट फूड प्रोवाइड कर पाएँ। नेक्स्ट क्या है, सेंसरी स्टिमुलेशन एंड इमोशनल केयर। सब जो चिल्ड्रंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इमोशनल, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इमोशनल केयर की, या फिर कह सकते हैं कि सेंसरी स्टिमुलेशन की। तो उसके बेसिस पे हमने ये केयर भी प्रोवाइड किया। नेक्स्ट क्या है, काउंसलिंग ऑन एप्रोप्रिएट फीडिंग केयर एंड हाइजीन। अगर चिल्ड्रंस जो हैं वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं तो उनका जो इम्यून सिस्टम होगा वो और वीक होगा, तो उसके बेसिस पे हमने फीडिंग स्टार्ट की और कह सकते हैं कि काउंसिल करना स्टार्ट किया और हाइजीन पे ध्यान देना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस फॉर प्रिपेयरिंग एनर्जी डेंस फूड्स, यानी कि हाँ जो भी मदर्स थी उनको हमने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से हम जो खाना है उसको हम बना सकते हैं जो उनके बच्चे के लिए अच्छा होगा, हाइजीनिक होगा और जो माल न्यूट्रिशन है उससे निकलने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, सोशल असेसमेंट ऑफ द फैमिली। कह सकते हैं कि जो उस टाइम पे जो चिल्ड्रंस थे जो सफ़र कर रहे थे माल न्यूट्रिशन से, उनके जो सोसाइटी थी उनको असेस करना, जिससे ये पता लग पाए कि माल न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो बेबी है वो क्यों माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है और क्या क्या चीज़ें हम इम्प्रूव करेंगे तो जो बेबी है उसको हम उसके हेल्थ में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नेक्स्ट, फॉलो अप केयर फॉर चिल्ड्रंस एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द फैसिलिटीज़। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसके बेसिस पे हमने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की है। RCS सेकेंड में ये स्टार्ट हुआ था और एक तरह से देखा जाए ये प्राइमरी इंटरवेंशन था जो हमने स्टार्ट किया था अंडर RCS सेकेंड। द गोल इज़ टू यूज़, यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेस एंड लेडीज हेल्थ विजिटर्स एट द PSC लेवल टू एक्सक्लूड द IMNCI पैकेज एट द हाउसहोल्ड लेवल एंड थ्रो ANMs एट द सब सेंटर लेवल। यानी कि जो भी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इसको हमने स्टार्ट किया था प्राइमरी लेवल पे और इसका गोल ये था कि जो भी मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेस या फिर कह सकते हैं कि लेडीज़ हेल्थ विजिटर्स जो उस टाइम पे थी PSC के लेवल पे, वो क्या कर पाएँ, जो IMNCI का पैकेज है वो हाउस होल्ड यानी कि घर घर जाके इन चीज़ों को वो पहुंचा पाएँ। कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर कह सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, और जो ANMs हैं वो सब सेंटर पे इस चीज़ को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, जिससे जो लोग हैं वो इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल कॉलेज आर इंक्लूडिंग प्री सर्विसेज IMNCI इंक्लूडिंग देयर कैलकुला, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज है वो भी इस चीज़ को क्या किया, अपने प्री सर्विसेज में उसने इंक्लूड किया था। यानी कि जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी IMNCI के सर्विसेज को प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। दिस विल बी असिस्ट इन द सप्लाई बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स विथ स्किल्ड IMNCI लेबर्स, यानी कि जो भी ये IMNCI का पैकेज था ये हमने पब्लिक एंड
प्राइवेट सेक्टर्स पे हमने इसको क्या किया, सर्कुलेट किया, जो कि क्या हो पाए, अच्छी तरीके से जो भी कम्युनिटी पर्सन्स हैं उन तक ये पहुंच पाए। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों में, या फिर कह सकते हैं कि न्यूबॉर्न्स को हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हमने काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले द प्लान इज एम्ड एट इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ न्यूबॉर्न्स बाय मेकिंग होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर एक्सेसिबल टू एनीवन। यानी कि हमने क्या किया, हमने प्लान किया कि जो एक तरह से देखा जाए न्यूबॉर्न के सर्वाइवल यानी मोर्टालिटी और मोबाइलिटी के दोनों के बेसिस पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो जो न्यूबॉर्न्स हैं अगर डिलीवरी के बाद वो घर जाते हैं तो उनकी जो केयर है वो किस तरह से हम कर सकते हैं या किस तरह से हमें करनी चाहिए, इसके बेसिस पे भी हमने प्लान किया कि कैसे हम लोगों को क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, जिससे वो न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड कर पाएँ अपने घर पे। नेक्स्ट क्या है, द सर्विसेज प्रोवाइड इंक्लूडिंग द मेडिकल ऑफिसर, ANM, आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स। हाउएवर द प्राइमरी प्लेयर्स इज इन होम बेस्ड ऑन द इन्फेंट केयर इज आशा। यानी कि जो भी MO या फिर कह सकते हैं ANM, आशा या आंगनवाड़ी वर्कर्स जो भी थी, उनके थ्रू हमने लोगों को एजुकेट करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूबॉर्न केयर है उस पर हम ध्यान दे पाएँ और मोर्टालिटी रेट को हम क्या कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ। नेक्स्ट है नवजात शिशु सुरक्षा कल्याण, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो स्कीम थी ये हमने स्टार्ट की थी किसके लिए, न्यूबॉर्न्स के लिए, इन ए कैरिकुलम डिजाइन टू टीच मेडिकल प्रोफेशनल्स द फंडामेंटल ऑफ इन्फेंट रेसिस्टेशन। यानी कि ये जो स्कीम थी ये स्टार्ट की गई थी कि अगर न्यूबॉर्न्स के बेसिस पे अगर किसी को कोई इमरजेंसी देखने को मिलती है तो हम कैसे रेसिस्टेशन परफॉर्म करेंगे, ये खासकर मेडिकल प्रोफेशनल्स जो थे उनके लिए स्टार्ट की गई थी। केयर एंड स्टार्टेड टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ केयर एंड डिलीवरी, यानी कि हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया था कि हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, यानी कि कैसे पता लगा सकते हैं और उस इशूज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी के तुरंत बाद अगर जो बेबी है उसको किसी तरह की भी नीड देखने को मिलती है तो उसके बेसिस पे हम उनको तुरंत हम उसको केयर प्रोवाइड केयर प्रोवाइड कर पाएँ। सच एज बेसिक न्यूबॉर्न रेसिस्टेशन, यानी कि कह सकते हैं कि ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो भी बेबी है वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ को देखने को मिल रही है, या फिर कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो बेबी है वो क्राई नहीं किया है, तो उसके बेसिस पे न्यूबॉर्न रेसिस्टेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम उस टाइम पे हम न्यूबॉर्न रेसिस्टेशन कर पाएँ, इसलिए हमने मेडिकल प्रोफेशनल्स जो थे उनको हमने ट्रेन करना स्टार्ट किया। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन, infection control and hypothermia prevention. On the basis of these things we are going to give a whole care of any newborn who are delivered now. We are going to take all the complications. If the resuscitation is needed, then how we have to perform the resuscitation, और उसके तुरंत डिलीवरी के तुरंत बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, प्लस इन्फेक्शन से बचाना है बेबी को और हाइपोथर्मिया से भी प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य संस्था कल्याण। राष्ट्रीय बाल संस्था कल्याण लॉन्च इन फरवरी 2013, early detection and management of the 4 Ds that are common in children in order to provide early intervention services and children health screening। यानी कि कह सकते हैं कि जो ये संस्था या कल्याण स्टार्ट किया गया था, या सर्विसेज जो स्टार्ट की गई थी, ये फरवरी 2013 में स्टार्ट की गई थी, और ये हमने स्पेशली 4 Ds को प्रिवेंट करने के लिए, जो भी बेबीज़ थे उनको प्रिवेंट करने के लिए स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला जो था वो क्या था, डिफेक्ट्स एट बर्थ, यानी कि जो भी बेबी है वो डिलीवर हो रहा है तो बर्थ के टाइम पे अगर वो इसी तरह का भी डिफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसके बेसिस पे हम क्या परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिफिशियंसी कंडीशंस, अगर कोई भी बेबी डिलीवर हो रहा है किसी डिफिशियंसी के साथ तो उसे हमें कैसे ट्रीट करना है। नेक्स्ट, डिजीज़ इन चिल्ड्रंस, जो भी चिल्ड्रंस में डिजीज़ देखने को मिल रही है तो उनसे हम कैसे बचा सकते हैं या फिर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे ट्रीटमेंट होगा, उसके बेसिस पे ये जो संस्था थी वो काम करती थी। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसएबिलिटीज़, जो ये डेवलपमेंटल डिलेज देखने को मिले हैं अगर हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं किसी भी बेबीज़ में, तो उन्हें हमें कैसे ट्रीट करना है, उसके बेसिस पे ये जो संस्था थी वो काम करती थी। नेक्स्ट क्या है, हमने 3 जो
दो फेजेस कह सकते हैं, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज हमने देख लिए RCS के। दिस इज़ नॉट थर्ड फेज। ये जो फेज़ है ये अभी जो चल रहा है, कह सकते हैं कि ये स्टार्ट किया गया था क्योंकि हमारी जो कंट्री है इसमें मोर्टेलिटी एंड मोबाइलिटी रेट जितना हमने सोचा था उतना कम नहीं हुआ। उसके बेसिस पे हमने इनिशिएटिव ये लिया कि रिकॉल टू द एक्शन, यानी कि जो भी हमने अभी तक स्टार्ट किया है उसी को हम रिकॉल करेंगे और जो भी हमने टारगेट अभी तक सेट किया था उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोसेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो जो हमने जो स्ट्रैटेजी है या रिकॉल है उसका नाम हमने रखा है RMNCAH प्लस न्यूट्रिशन और N। सो R इज डोनेटेड टू रिप्रोडक्शन, M इज डोनेटेड टू मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोसेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो ये जो है ये स्टार्ट हुआ था फरवरी 2013 में, जो कि अभी तक चला आ रहा है। और इससे रिलेटेड जो भी हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने ये इनिशिएटिव लिया, ये स्ट्रैटेजी बनाई जिससे जो भी कह सकते हैं जो भी हम अभी तक जो इश्यूज़ आ रहे थे या जो डिसेबिलिटीज़ अभी तक हम फेस कर रहे थे अपने सर्विसेज प्रोग्राम्स में, उस चीज़ को हम इसमें फुलफ़िल कर पाएँ। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बेसिस पे स्टार्ट किया गया है, जो कि हमारी कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जिसका नाम हमने दिया है कॉल टू एक्शन या फिर कह सकते हैं RMNCAH प्लस N, जो कि इंट्रोड्यूस इस बेसिस पे किया गया है कि हम एक स्ट्रैटेजी प्लान कर पाएँ जिससे मोर्टेलिटी एंड मोबाइलिटी रेट को हम रिड्यूस कर पाएँ। तो जो ये प्लान है ये बेस्ड है कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पे, यानी कि कंटिन्यूइंग केयर पे, जिसके बेसिस पे हम एक न्यू आइडिया के साथ काम करें और जो भी इनिशिएटिव अभी तक हमने लिया है उस चीज़ पे हम कॉन्सेंट्रेट करें जिससे हम मोर्टेलिटी एंड मोबाइलिटी रेट हैं उसको क्या कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ। तो the plan is based on the continuum of care ideas and designed holistically, concentrating on the strategy life cycle approach and including all the interventions targeted at maternal, newborn, child, adolescents and reproductive health and nutrition under a large कैनोस्पी। इसका मतलब ये हुआ कि कह सकते हैं कि जो भी हमने ये प्लान किया है या फिर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है उसको इस बेसिस पे स्टार्ट किया गया है कि जो भी सर्विसेज अभी तक चली आ रही थी उसको हम कंटिन्यू वैसे ही चलाएंगे और इसका जो नाम होगा वो हमने रखा है कॉल टू एक्शन। तो कह सकते हैं कि ये सर्विसेज क्यों स्टार्ट की गई। एक अगर हम देखें कि 2010 के बेसिस पे जो भी ग्लोबली कह सकते हैं कि इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का जो डाटा रहा है वो ये रहा है कि इन द 2010 इंडिया फॉर 19 ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ, या कह सकते हैं कि ग्लोबली अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में 19% मैटरनल डेथ इंडिया में देखने को मिली हैं एंड न्यूली 20% ऑफ ग्लोबल चाइल्ड डेथ। कह सकते हैं कि पूरे ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया में 15.8 लाख बच्चों की मौत इंडिया में देखने को मिली है, यानी कि डेथ रेट हमारी रही है। और मैटरनल देखा जाए तो 56,000 इंडिया में जो डेथ है वो देखने को मिली है मैटरनल के बेसिस पे। तो एक तरह से देखा जाए कि इसके बेसिस पे जो भी हमने RCS स्टार्ट किया था उसका जो वर्क है वो बहुत स्लो रहा है, इस वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया है नया। नेक्स्ट क्या है, इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट विथ नोटेबल रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट ऑल्सो। कह सकते हैं कि इंडिया में जो भी हमने अभी तक देखा है कि जो भी प्रोग्रेस रिड्यूसिंग ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ मोर्टेलिटी वो कम से कम देखने को मिली है। इसी वजह से हमने नया इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से हम इस पर काम कर पाएँ। नेक्स्ट क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन हाई बर्डन स्टेट्स लाइक। कह सकते हैं कि जो ये इनिशिएटिव लिया गया ये कुछ स्टेट पे सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए लिया गया, क्योंकि ये जो स्टेट्स थे एक तरह से हाई बर्डन के बेसिस पे या फिर कह सकते हैं ब्रॉड ये स्टेट्स थे, जैसे आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश विद सिग्निफिकेंट वेरिएशंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स विद इन दीज स्टेट्स। ये जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि क्या है बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, इसके बेसिस पे हम जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डाटा है वो इसके बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी वजह से हमने क्या किया है, इस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसा हमने जो लास्ट जो फेज़ है जो अभी चल रहा है फेज़, उसके बेसिस पे हम
हमने इस चीज़ पे फोकस किया है। द डॉक्यूमेंट stresses the need for targeted intervention in these high burden states, including addressing social determinants of health like female literacy and इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। ये कह सकते हैं कि 2010 के बेसिस पे अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट इंडिया की कम ही रही है वुमेंस में। तो हमने ये इसके स्ट्रैटेजी में हमने ये भी ऐड किया है कि जो लिटरेसी रेट फीमेल की रही है उसको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज़ 2.5। कह सकते हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया की वो 2.5 है विथ 21 स्टेट्स। 21 स्टेट में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं 25 के बेसिस पे इंडिया में फर्टिलिटी रेट देखने को मिल रहा है। तो इन रिचिंग द तो ये सारे जो कह सकते हैं कि डाटा है या फिर वाई वी आर स्टार्टेड दिस अगेन, तो ये एक तरह से देखा जाए हम कह सकते हैं कि ये कॉजेज़ रहे हैं जिसके बेसिस पे हमने इसको दोबारा स्टार्ट किया है। तो गोल एंड टारगेट हमने क्या क्या सेट किया है। तो सबसे पहले देखा जाए कि द 5-year प्लान हैज़ डिफाइंड द नेशनल हेल्थ आउटकम एंड द 3 गोल्स। जो 12 5-year प्लान जो था उसके बेसिस पे हमें एक डाटा मिला है कि हम जो भी काम कर रहे थे अभी तक RCS के बेसिस पे उसमें कितना रिडक्शन या फिर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। उसके बेसिस पे हमने ये एक कैरिकुलम बनाया है जिससे हम इस पे काम करेंगे और हम जो मोर्टालिटी एंड मोबालिटी रेट है उसे हम कम करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ आउटकम गोल्स एस्टैब्लिश्ड इन 12 5-year प्लान। जो कह सकते हैं कि जो भी गोल्स थे वो 5-year प्लान के बेसिस पे हमने एक बार इवैल्यूएशन किया है। उसमें हमने मोर्टालिटी रेट देखने को मिला है रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 25% 1000 लाइव बर्थ बाय 2017। तो 2017 के जो डाटा है उसके बेसिस पे 25% 1000 लाइव बर्थ देखने को मिली हैं। रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी रेट IMR टू 100 पर 100,000 लाइव बर्थ इन ये भी कह सकते हैं कि 2017 की डाटा के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट रिडक्शन इन टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1 बाई 2017। तो ये एक डाटा हो गया जिसके बेसिस पे कह सकते हैं कि हमने इस चीज़ को दोबारा क्या किया है, प्लान किया है। अगर हम टारगेट देखें कि हमने कितना टारगेट किया है कितने ईयर्स तक के बेसिस पे, तो कह सकते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो जो रहा है करंट जो बेसिस पे देखा जाए तो 97 हम कह सकते हैं कि अभी तक का है। लेकिन जो हमने टारगेट किया था 2020 के बेसिस पे 100 बाई 2020 के बेसिस पे हमने किया था, पर अभी तक हमने 100% अचीव नहीं किया है। लेकिन जो नेक्स्ट हमने जो टारगेट किया है वो किया है 2030 के बेसिस पे, जो कि हमने लेस देन 70 यानी कि 97% हमने अचीव किया है अभी करंट डाटा, और हमने टारगेट किया है 2020 के बेसिस पे 100। बट अगर नहीं हो पाता है तो लेस देन 70 हमने टारगेट किया है कि लेस देन 70 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट 20% अभी देखने को मिल रहा है। 16 हमने कह सकते हैं हम अभी 2019 के बेसिस पे हमने प्लान किया था, और 16 बाई 2025 के बेसिस पे हमने प्लान किया था, और लेस देन 12 और कह सकते हैं कि 12 के बेसिस पे हमने प्लान किया है कि रिडक्शन हम देखने को मिलेगा हमें। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 25 2020 के बेसिस पे प्लान हमने अभी करंट के बेसिस पे देखा जाए तो इतना है। नेक्स्ट हमने 28 बाई कितना प्लान किया था 2019 के बेसिस पे, लेकिन अभी तक का कह सकते हैं कि अभी हमने ऐसा कुछ क्या कह सकते हैं टारगेट नहीं किया, क्योंकि ये जो टारगेट था ये अचीव हो गया। 28 हमने टारगेट किया था करंट के बेसिस पे, और अभी जो करंट हमारा इतना था और हमने इतना अचीव कर लिया 2019 के बेसिस पे। और नेक्स्ट अंडर 5 मोर्टालिटी रेट यानी कि जो भी चिल्ड्रंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो 32 करंट डाटा है, 23 हमने क्या किया है, अचीव किया है कह सकते हैं, और हम अभी प्लान कर रहे हैं कि 25 और लेस देन 25 हमें देखने को मिलेगा कि इतना हम कंप्लीट कर लेंगे 2030 में। नेक्स्ट आपका क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0, जो कि कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कवरेज टारगेट फॉर की RMNCH+N
नेक्स्ट, इंटरवेंशंस फॉर 2017, क्या क्या चीज़ें हमने 2017 तक प्लान की थी और क्या क्या हमने किसके बेसिस पे हमने अचीव कर लिया था। इंक्रीज फैसिलिटी इक्विपमेंट equipped for perinatal care, increase proportion of all birth in government and excluded private institutions, and annual rate of 5.6% from the baseline of 61%. Increase proportion of pregnant women receiving antenatal care and annual rate of 6% from the baseline of 53%. Increase proportion of mothers and newborns receiving postnatal care at annual rate of 7.5% from the baseline of 45%. Increase proportion of deliveries conducted by skilled birth attendant and annual rate of 2% from the baseline of 76%. Increase is exclusive breastfeeding rate at annual rate of 9.6 from the baseline of 36%. These are the 2017 target that we are completed, or we have less some proportion. So what are the next? Reduce the prevalence of under 5 age who are underweighted at an annual rate of 5.5% from the baseline of 45%. Increase coverage of 3 doses of combined diphtheria, tetanus and pertussis 12 to 23 months at an annual rate of 3.5% from the baseline of 7%. Increase ORS use in under 5 children with diarrhea at annual rate of 7.2% from the baseline of 73%. Reduce unmet need for family planning methods along eligible couple, married and unmarried, at an annual rate of 8.8% from the baseline of 21%. Increase meet the need for modern family planning methods among eligible couple at an annual rate of 4.5% from the baseline of 47%. Reduce anemia in adolescent girls and boys 15 to 19 years at an annual rate of 6% from baseline of 56% and 30% respectively. Decrease the proportion of total fertility contributed by adolescent 15 to 19 years at an annual rate of 3.8% per year from the baseline of 16%. Rise child sex ratio in 0 to 6 years age group at an annual rate of 0.6% per year from the baseline of 914. This is the data of 2017. तो इतनी चीज़ें हमने देखा कि ये चीज़ें हमने रिड्यूस की और ये चीज़ें हमारी बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो इसके बेसिस पे हमने ये दोबारा प्लान किया कि हम इस चीज़ पे काम करेंगे और इस चीज़ को और मोबिलाइज करेंगे और लोगों में और अवेयरनेस देखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी, अब क्या स्ट्रैटेजी हमने प्लान की है एडोलेसेंस के बेसिस पे, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रायोरिटी में रखा है क्या क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशंस देखने को देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या है, एडोलेसेंस न्यूट्रिशन, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। ये जो सप्लीमेंट्स हैं हम ये प्रोवाइड करेंगे एडोलेसेंट्स में, जिसके बेसिस पे जो उनका कह सकते हैं कि जो उनकी हेल्थ है उनको हम इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटी बेस्ड एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज। ये भी हम एडोलेसेंट्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे जिससे वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएँ, प्लस अपने हेल्थ से रिगार्डिंग उन्हें हेल्थ एजुकेशन भी मिले, जिससे वो अपनी हेल्थ पे कह सकते हैं कि उसके बेसिस पे वो अपनी हेल्थ के बेसिस पे काम कर पाएँ। नेक्स्ट क्या है, जो भी अदर इश्यूज़ हेल्थ में देखने को मिल रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी हम उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे जो भी एडोलेसेंट्स हैं वो अवेयर हो पाएँ। नेक्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बेसिस पे जो गर्ल्स चाइल्ड हैं एडोलेसेंट्स के बेसिस पे उन्हें हम क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, यानी कि उनको कौन कौन से हेल्थ चेकअप्स लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हम उन्हें
अवेयर करवाएंगे। ये स्ट्रैटेजी है एडोसेंट्स के बेसिस पे। नेक्स्ट क्या है, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के बेसिस पे क्या क्या हम इंटरवेंशंस लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंटरवेंशंस हैं, और अभी भी ये इंटरवेंशन कंटिन्यू के फेज में एक तरह से देखें चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, प्रायोरिटी इंटरवेंशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है डिलीवरी ऑफ एंटीनेटल केयर पैकेज एंड ट्रैकिंग ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से ही जो RCS के बेसिस पे हैं लोगों का रजिस्ट्रेशन करना हमने कर दिया। अभी भी एक तरह से देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं या हेल्थ सेक्टर्स के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं कि प्रेग्नेंट होने के तुरंत बाद जो आशा या आंगनवाड़ी होती हैं वो उन्हें रजिस्टर करा देती हैं। इसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क है या नहीं है। तो अगर हमें पता चलता है कि जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क है तो उसके बेसिस पे हम कैसे डिलीवरीज प्लान करेंगे या एंटीनेटल पोस्टनेटल पैकेजेस कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, स्किल बेस्ड केयर। स्किल बेस्ड केयर, जो भी हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ANMs को या फिर कह सकते हैं आशा को, उसके बेसिस पे वो क्या क्या केयर उन्हें प्रोवाइड कर सकती हैं, वो सारी केयर्स उन्हें हम प्रोवाइड करवाएंगे सर्विसेज के बेसिस पे। नेक्स्ट क्या है, इमीडिएट इनिशियल न्यूबॉर्न केयर एंड रेसिसिटेशन। जो भी न्यूबॉर्न्स के बेसिस पे जो भी केयर्स हम प्रोवाइड कर पाते हैं, कह सकते हैं जो इमीडिएट केयर हमें प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर अगर जो भी बेबीज़ हैं उनमें हमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है या फिर उन्हें ज़रूरत है किसी तरह की केयर की, तो ये सारी केयर्स हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। इमरजेंसी ऑब्स्टैटिकल एंड न्यूबॉर्न केयर, इमरजेंसी के बेसिस पे ऑब्स्टैटिकल और न्यूबॉर्न केयर जो भी प्रोवाइड करनी होगी वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट क्या है, पोस्टनेटल केयर फॉर मदर एंड न्यूबॉर्न। डिलीवरी के बाद जो भी पोस्टनेटल केयर्स हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे इसके बेसिस पे। नेक्स्ट क्या है, पोस्टनेटल IUCD एंड स्टरलाइजेशन। ये भी कह सकते हैं कि पोस्टपार्टम के बेसिस पे जो स्टरलाइजेशन या IUD अगर जो मदर है वो चाहती है कि वो इस सारी सर्विसेज या फैमिली प्लानिंग का यूज़ करे, तो ये सारी चीज़ें भी हम उसे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे और उसके रिगार्डिंग उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PC एंड PNDT एक्ट। नेक्स्ट न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर। इसके बेसिस पे न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर के बेसिस पे जो प्रायोरिटी इंटरवेंशंस हैं वो क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो RCH या फिर कह सकते हैं जो लास्ट फेज इनिशिएटिव कॉल जो हम ले रहे हैं या स्ट्रैटेजी जो हमने प्लान की है अभी जो प्रेजेंट में चल रही है, उसके बेसिस पे हम न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर के बेसिस पे हम क्या प्रायोरिटीज़ हमने क्या क्या रखी हैं। तो होम बेस्ड हेल्थ केयर एंड प्रमोट रेफरल्स, यानी कह सकते हैं कि जो भी रेफरल सिस्टम है उसे हम प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटी बेस्ड ऑन द सिक न्यूबॉर्न। जो भी न्यूबॉर्न्स हैं, सिक हैं, उनके बेसिस पे क्या क्या केयर उनको प्रोवाइड करनी है, हमें क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बेसिस पे हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस। जो भी चाइल्डहुड इलनेस में कॉमनली देखने को मिलता है, हमारे एलिमेंट्स के बेसिस पे देखने को मिलता है, वो सारे जो कह सकते हैं कि जो इलनेसेस देखने को मिलती हैं उनके बेसिस पे भी हम केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड इंसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे जो भी चिल्ड्रंस हैं या फिर न्यूबॉर्न्स की वजह से। न्यूबॉर्न्स में हम सप्लीमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते, चिल्ड्रंस में हम प्रोवाइड करेंगे या चाइल्ड में प्रोवाइड करेंगे। इम्यूनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाएंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके जब तक उनका इम्यूनाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता है। अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्थ डिफेक्ट, डिसेबिलिटीज और डिजीज एंड इन द चिल्ड्रंस। कह सकते हैं कि 0 से 18 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनमें क्या क्या डिसेबिलिटीज़, डिफेक्ट्स या फिर कह सकते हैं डिफिशियंसीज देखने को मिल रही हैं, डिजीज कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे भी हम काम करेंगे। नेक्स्ट क्या है, थ्रू द रिप्रोडक्टिव ईयर्स। रिप्रोडक्टिव ईयर्स के बेसिस पे जो प्रायोरिटीज़ हमने अभी तक रखी हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हम देते हैं लोगों में या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कम्युनिटी बेस्ड प्रमोशन एंड डिलीवरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक्स। जो भी कॉन्ट्रासेप्टिक्स की डिलीवरी हैं या कह सकते हैं कि कम्युनिटी के बेसिस पे हम जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उनका हम कह सकते हैं उनको प्रमोट करेंगे और लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ स्पेसिंग मेथड्स। वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव द हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट, स्टरलाइजेशन सर्विसेज, व्हाट आर द थिंग्स दे वांट टू इंक्लूड इन देयर लाइफ। हम वो सारी चीज़ें भी उन्हें हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और उन्हें उसके रिगार्डिंग में उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर इंक्लूडिंग MTP एक्ट। MTP एक्ट के बेसिस पे भी हम जो भी इंफॉर्मेशन है उनको हम प्रोवाइड करेंगे और इंफॉर्मेशन में
क्या क्या चीज़ें उन्हें नीडेड है उनके बेसिस पे भी हम उन्हें काउंसिल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि STI एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस हैं उनके बेसिस पे भी हम उन्हें काउंसिल कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि उन्हें STD के बेसिस पे भी हम उन्हें मैनेजमेंट हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेजर स्ट्रैटेजीज, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अभी जो चल रहे हैं सर्विसेज RCS के बेसिस पे, या अभी जो हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजी हमने प्लान की है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, इंटीग्रेटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, फोकस ऑन द एडोसेंट हेल्थ थ्रू प्रोग्राम्स लाइक द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कल्याण। क्या है नेक्स्ट है स्ट्रेंथन मटेरियल एंड न्यूबॉर्न केयर वाया द जनरी शिशु सुरक्षा कल्याण। नेक्स्ट, इनहेंस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव। ईच फेज हैज progressively expanded its scope to achieve comprehensive reproductive and child health आउटकम्स। यानी कि जो भी हम अभी इस टाइम का जो फेज चल रहा है, प्रेजेंट फेज जो चल रहा है, ये इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे बेस्ड है कि जो भी अभी तक के हमने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं या फिर जो भी प्रोग्राम्स अभी तक हो गए हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करें, उन्हें हम इन्हेंस करें, एक्सपेंड करें, जिससे हम लोगों को क्या करें और अवेयर कर पाएँ और उनकी हेल्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर पाएँ, अपने आप को हेल्दी रख पाएँ। सो थैंक you so much. If you have any queries, you can also comment below my video, and please do share and subscribe our channel rjcsk.edu. Thank you so much.